So आज का जो हमारा topic is just to encourage everyone, children as well as older people, waiting on the Lord with patience. खुदावन पर आस रखना पर सब्र से. आजकल मैं देखती हूँ we see all around us that the people are in rush. Children are in rush. They want things ahead of their time, ahead of their age. For example, if they're not even at that age of driving, they want cars. If they're not at that age of using cell phones, they want cell phones. They don't wait for it, and people get impatient. Even if you're driving, and you will see that people don't have patience. आप देखते हैं कि even driving में भी कई दफ़ा अगर आप किसी गाड़ी को आपके पास से कोई गुजरती है या कोई हॉर्न करता है बार-बार, क्योंकि इसी में मैं देखती हूँ कि बहुत पेशेंस जो है वो कम हो गई है लोगों के अंदर. So I want to encourage you today that I don't know what situations you're going through, whether those are for worldly things or it is regarding something very important to you personally. Just wait patiently on the Lord. Waiting on the Lord with patience. Now when you wait upon the Lord with patience, what happens? 10 things happen when you wait upon the Lord with patience. जब आप सब्र से खुदावन की आस रखते हैं किसी भी मसले में, तो 10 चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में होती है. Number 1, you trust in the Lord's timing. You don't rush. आप rush नहीं करते, but when you wait on the Lord, you're waiting for Him to answer your prayer or your petition or your request or your desire. You are waiting upon the Lord. So I want to encourage the young children to listen to this very carefully. Don't get angry very fast. Don't be stressed out. Don't be depressed. But wait upon the Lord for His timing. So the number 1 thing, when आप खुदावन पर आस रखते हैं सब्र से, तो क्या होता है? You trust in the Lord's timing. Number 2, you surrender to the Holy Spirit. Number 3, you hope in Jesus Christ. You have a testimony. You come out with the testimony, and you have the strength, this wonderful strength to face that situation. You have courage and boldness to face the situation. Number 7, Lord God never brings shame to His people. आपके मुंह पे कभी भी शर्मिंदगी नहीं आएगी जब आप खुदावन पर आस रखेंगे सब्र से. And number 8, He will establish your steps. You will be strong in the Lord. Number 9, He changes your attitude and teaches you not to complain but be thankful in all the situations. जब आप खुदावन पर वेट करते हैं, and it changes your ability to make decisions. जब आप खुदावन के आगे किसी सिचुएशन को रखते हैं, तो आपका डिसीजन लेने की जो आपके अंदर सलाहियत होती है, वो आपको पाकरू जो है वो गाइड करता है. So these are the 10 things that happen in your life when you wait upon the Lord with patience. So this new year, I want to encourage the children, the young children, the parents, and everybody who's listening to us online to wait patiently in the Lord of whatever situation you are going through. There's so many situations that we go through in this world, in our life, that things happen, but you must wait patiently on the Lord. In Psalm 40, let's read Psalm 40 and first 3 verses. It's written, मैंने सब्र से खुदावन पर आस रखी, उसने मेरी तरफ मायल होकर मेरी फरियाद सुनी, उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम की. उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला. वो तेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावन पर तवक्कल करेंगे. बहुत तेरे देखेंगे, जब आपकी टेस्टिमनी आएगी, बहुत से लोग देखेंगे how the things changed for you, क्योंकि आपने खुदावन पर सब्र से क्या रखी है जी? आस रखी. You waited upon the Lord with patience. Now look at it in English. It's written, I waited patiently for the Lord, and He inclined to me and heard my cry. He also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. He has put a new song in my mouth, praise to our God. Many will see it and fear and will trust in the Lord. जब आप गवाही के साथ वापस आते हैं, you share your testimony that you waited upon the Lord for so many reasons. For example, if somebody is waiting for a baby, and after 12 years or 10 years or 13 years, God blesses you with a baby, and you come out with a testimony, the people are encouraged to hear your testimony because you were waiting for it patiently, and in God's timing, He blessed you, and you were
and you were able to share your testimony. So people see how God worked into your life. So wait patiently for the Lord. It's written, and he inclined to me and heard my cry. When you cry out to the Lord, जब आप सब्र से खुदावंद पर आ सकते हैं और आप उसके आगे रोते हैं, आप उसके आगे अपनी दरख्वास्तों को रखते हैं, तो इंग्लिश में लिखा है, and he inclined to me. What does the word incline means? Incline का मतलब होता है जैसे झुक जाता है, वो आपकी तरफ उसका ध्यान लग जाता है. So it's very important. And then in the coming verses it is written, he also brought me up out of a horrible pit, out of my miry clay, and set my feet upon a rock and established my steps. वो आपके steps को establish करता है, meaning कि he sets them up on a firm foundation. And our foundation, the strong foundation, is Jesus Christ. आपका ईमान और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है कि खुदावंद आपका खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा और अपने ठहराए हुए वक्त पर आपको जवाब देगा. So let's not be impatient, but wait patiently on the Lord. All you children who look for the things in the world and are attracted to the things of the world, you are young, you are very young, and you want things of this world that are not age appropriate, and you are asking from your parents to give you cell phones or things of the world that you do not need right now. Wait patiently for the right time. When my daughter got her license, she was 16 years old, and she wanted a car at that time. The second daughter, Ifta. But we told her she's not ready for it. So 16, 17, 18, and 19. This year in December, last year in December, she got a car. She waited 4 years. Once she was, she was confident enough to drive. Financially, she was stable. Financially, she was able to make the car payments and insurance payments. We let her, help her to buy a car. So all you little children and young children, your parents know when is the right time for you to be blessed with any kind of your desire. So pray to God, and all the parents pray to God. When your children are asking for different things of the world, don't be angry, don't be, कई दफा पेरेंट्स गुस्से में आ जाते हैं और घर के हालात खराब हो जाते हैं और बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. Just pray about the situation. Trust the Lord. हमने हमेशा अपनी बेटी को कहा था, just wait upon the Lord. जो राइट टाइम होगा उस पर तुझे मिलेगी और बहुत अच्छी तरह से मिलेगी. So we helped her save the money when she had a good job and she was able to afford it. So all your children, you will get everything. You can get everything in this world in the name of Jesus Christ, but you have to wait patiently. Don't rush your parents into things that you're not able to handle right now. So number one thing we learned is that trust in God's time for you, for your prayer request to be answered. Trust कि आपका खुदा आपको प्यार करता है. He will never leave you. He will never forsake you. He's always there for you. And His time is different than your time. जो आप सोचते हैं कि ये मेरा टाइम है, I need this thing right now. In this world, everybody needs everything right now, and that is why the things are getting worse and worse. And you see so many things in the world and in the news because people are not patient. People cannot wait. Wait upon the Lord. Wait for the right time. So what do you do when you're waiting? You're praying, you're fasting, you're serving the Lord. आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, रोज़ा रखें, खुदावंद की खिदमत करें और करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी दुआओं का जवाब आपको मिल जाएगा. आप कहते हैं हम तो ऑलरेडी खिदमत कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी हदिया दे रहे हैं, हम तो ऑलरेडी रोज़े रख रहे हैं, और ज़्यादा कीजिए, और ज़्यादा कीजिए, और आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि खुदावंद आपके लिए दरवाज़ों को खोल देगा. हमेशा अपनी sufferings में, whenever you're going through a suffering time period in your family or personally, be faithful to the Lord. Be faithful to the Lord. Never complain. Job never complained. Joseph went into slavery and imprisonment, but he never complained. And number 3, endure. Endure. बर्दाश्त करें. बर्दाश्त करें. खुदा से Lord, I need strength to wait upon you. Only Lord can give you strength. Only He can fill you up by the power of the Holy Spirit. We see Hannah. Hannah waited and prayed and she then received the child. But we never see that Hannah lost her hope in her God. We never see Job complaining from his mouth, even though he lost everything. But Job never complained. अय्यूब ने कभी अपने लबों से खतावा की. हन्ना ने भी हमेशा खुदा के आगे उम्मीद रखी. और जोसेफ ने भी हम देखते हैं कि उसने even through his slavery and imprisonment, he endured it and he waited upon the Lord, and then later on he
received the leadership in Egypt. And we all know the whole story. So today I want to encourage you to never ever complain. All you children, all you elderly people, हम even बड़े भी कई दफा जब तक हमें कुछ मिलता नहीं है, हम कई दफा बड़े बेचैन से हो जाते हैं, कहते पता नहीं खुदा ने कदों मेरी दुआ सुनी, मुझे लगता है खुदा ने जवाब नहीं देना. हम कई दफा ऐसी बातें कर जाते हैं. We should not say that, you know. We learn from Job, you know, पहला बाब और पहले बाब में लिखा है जब अय्यूब ने उठकर अपना पैर चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सजदा किया. When he lost everything, वो सजदा कर रहा है. He is not complaining. वो कोई भी अपने मुंह से खता नहीं कर रहा. और कहा नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा. खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो. उसकी बीवी उसको कहती है कि तू कंप्लेन करता. वो क्या कहता है अपनी बीवी को आगे से, पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है. क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता न की. He never complained. आपका वेटिंग पीरियड शायद 1 महीने का, 1 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 साल का, 2 साल, 13 साल, 12 साल, 10 साल, वी डोंट नो. मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था कि मेरे चाचू का बेटा है, एवरी डे ऑलमोस्ट वो मुझे टेक्स्ट करता था, बाजी कीप अस इन प्रेयर, बाजी कीप अस इन प्रेयर. 8 साल बाद पिछले साल अक्टूबर में खुदावन ने उसको बेटा दिया. He was blessed with his son and he named him Moses. Such a beautiful child. But God answers. अगर आप faithful रहेंगे, अगर आप obedient रहेंगे, तो खुदावन हमेशा ही आपकी दुआओं का जवाब देगा. बट आपने सब्र के साथ आस रखने. लिखा in all this Job did not sin nor charge God with wrong. उसने कभी खुदा को उंगली नहीं उठाई, कभी खुदा का आके कंप्लेन नहीं की. In all this Job did not sin with his lips. अपने होठों से उसने खता न की. अय्यूब की मिसाल बहुत ही खूबसूरत मिसाल है. हन्ना की मिसाल बहुत खूबसूरत मिसाल है. जोसेफ की मिसाल जो है वो बहुत खूबसूरत मिसाल है. एज ही वाज इन स्लेवरी. अब आपको पता स्लेवरी में हो, जेल में हो, इम्प्रिजनमेंट में हो और वो कंप्लेन ना करे और खुदा उसको लीडरशिप के साथ रिवॉर्ड करता है. हन्ना को खुदा ने औलाद के साथ रिवॉर्ड किया और इसी तरह अय्यूब को खुदा ने दुगना सारा कुछ वापस दिया. सो देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर यू इफ यू वेट पेशेंटली ऑन द लॉर्ड. And in Psalm 27 verse 14 में लिखा, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. So इस verse 14 में 2 दफा एक ही बात की गई है. Wait on the Lord. Wait, I say, on the Lord. So today all you children as well, if you're demanding unnecessary things, if you're making these choices and decisions, and your mind is going, crazy, just wait on the Lord. Start praying. Start reading the Word of God. Start coming to church. Start attending the worship, and allow the Holy Spirit to give you wisdom and knowledge to handle the situation rather than handling it on your own. उर्दू में क्या लिखा है 27 ज़बूर की 4वीं आयत में? खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कभी हो. हाँ, खुदावंद ही की आस रख. एक ही आयत में 2 दफा कहा है, हाँ, खुदावंद ही की आस रख. सो आपने खुदावंद पर आप आस रखिए. वेट, आई से द लॉर्ड. वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए. देखिए, मैं आपके साथ एक और गवाही शेयर करती हूँ. पिछले हफ्ते की गवाही है बाय माय ओल्डर सिस्टर. शी कॉल्ड मी. सो लास्ट ईयर आई बिलीव इट वाज द एंड ऑफ द ईयर. मेरी बड़ी बहन जो इधर रहती हैं नीला, वो आ नहीं सकी अपनी गवाही देने आज, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि लास्ट ईयर शी वेंट टू द डॉक्टर और उनकी जो आईसाइट चेक हो, शी हैज डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर. तो डॉक्टर ने उसको कहा कि तेरी आई के पीछे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, यू हैव टू गेट ट्रीटमेंट्स डन एंड एवरी इंजेक्शन इज गोना कॉस्ट यू विद इंश्योरेंस $1,000. और वो बहुत परेशान थी, उसकी इंश्योरेंस भी कवर नहीं कर रहे थे. और मैंने कहा चल हम दुआ करते, विल प्रे अबाउट इट. नथिंग हैपेंड टू हर. थैंक्सगिविंग, क्रिसमस हमने खूब एंजॉय किया. नथिंग हैपेंड टू हर, शी वाज फाइन. और लास्ट वीक व्हेन शी वेंट टू फॉलो अप फॉर हर डॉक्टर्स आई अपॉइंटमेंट, तो उसके डॉक्टर के वर्ड्स आप सुने. कहता है, आई हैव हर्ड अबाउट मिरेकल्स बट आई हैव सीन इट टुडे दैट योर रिपोर्ट इज चेंज्ड. यू डोंट नीड एनीथिंग, यू डोंट नीड एनी इंजेक्शंस एंड नथिंग. आई डोंट सी एनीथिंग इन योर रिपोर्ट. सो व्हाट डिड वी डू? वेट अपॉन द लॉर्ड. हमने खुदावन पर आस रखी सब्र से. हमने जल्दबाजी में ये नहीं किया चलो जी कैश दे दो $1,000 जल्दी से टीका लगा दो. हम कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन वी वेटेड अपॉन द लॉर्ड. हमने थोड़ा सा टाइम मांगा खुदावन से और उस टाइम में क्या हुआ? खुदावन ने हमारी आस को और भी ज्यादा मजबूत हुआ. हम कभी हुए, वी आर कमिंग आउट विद द टेस्टिमनी, वी आर रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड बिकॉज गॉड चेंज्ड द होल मेडिकल रिपोर्ट.
In January of this month, I want to encourage each and everyone to please stay strong in the Lord and ask the Holy Spirit for wisdom and knowledge कि अपनी marriage problems को, अपनी personal problems को, अपनी medical problems को handle it with the wisdom and knowledge from the Lord. Pray about it, fast about it, serve in the house of the Lord. सबर से खुदावंद पर आस रखें और खुदावंद आपकी दुआओं को सुनेगा। और आपको लिखा है उसने मुझे हौल में गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम की। He establishes your steps. वो आपको कहाँ से निकाला था? किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप क्यों ना हो जिसमें बहुत ही इम्पॉसिबल आपको लगे कि ये दरवाजा कभी नहीं खुल सकता, पता नहीं कब मेरे लिए हालात बदलेंगे। Trust in the Lord. Wait upon the Lord and He will answer you. Expect high on your high. Expect high on the Lord. आपके expectations बहुत ही high होनी चाहिए. We serve a mighty God, a mighty defender. We serve a God who is able to do miracles even today. पहले पूजा में उसने 2 हिस्से कर दिए. हालेलुया. वो बड़े-बड़े काम कर सकते हैं आपके, वो आज भी मौजे करता है. ये जो गवाहियां हम सुनते हैं लोगों से, ये आज की गवाहियां हैं, इन दिनों की गवाहियां हैं. इसलिए आपकी जिंदगी में भी खुदा काम करेगा. मजबूत रहिए खुदा में और उम्मीद ना होइए बल्कि उसमें कायम रहिए. वो आपको वक्त पर सरबलंद करेगा. वो ईमानदार के मुंह पे कभी शर्मिंदगी नहीं आने देता. मैंने खुद देखा है कि वो कभी ईमानदार के मुंह पे शर्मिंदगी नहीं आने देता. पर अगर आप ईमान में कायम रहेंगे, if you will stay in your faith, then the Lord will always show you favor. कहते हैं वो इंक्लाइन करता है आपकी दुआओं की तरफ, वो झुक जाता है, वो अपने कानों को झुकाता है आपकी दुआओं की तरफ. जब आप उसके आगे झुकते हैं, आपसे मांगते हैं. इंक्लाइन का मतलब क्या होता है? फीलिंग willingly or favorably towards someone. उसकी फेवर आप पर आ जाती है. आज तक खुदावन की फेवर थी. जब उस पर एक सिचुएशन ऐसी आई तो उसने एकदम से फैसला नहीं लिया. She decided to fast for 3 days with her friends. उसके बाद जो है उन्होंने स्टेप लिया. कई दफा आप थोड़ा सा टाइम लीजिए अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. किस तरह से हैंडल करना है खुदावन आपको गाइड करेगा. मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि आप दुआ में बैठे और आपने खुदावन मुझे रास्ता दिखा और खुदावन कहे कि मैं उसको दुआ के लिए. ऐसा नहीं होता. अगर आप सच्चाई के साथ खुदावन के कदमों में बैठेंगे, कहेंगे खुदावन ये मेरी सिचुएशन, मेरी मैरिज की, मेरी पर्सनल, मेरे बच्चों की पढ़ाई की, सिकनेस की, खुदावन आपको जवाब जरूर देगा. होली स्पिरिट आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा किस तरह से आपको सिचुएशन को डील करना है. सो आज हम यही सीखते हैं कि खुदावन जो है अपने लोगों पर हमेशा रहम करते. ज़बूर 5 उसमें उसकी 11वीं आयत में लिखा है लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो. वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं क्या होंगे जी? शादमान. क्या खुदा आपके चेहरे उदास नहीं रहेंगे. जब आप खुदावन पर उम्मीद रखेंगे आप हमेशा खुश रहेंगे. वो सदा खुशी से ललकारे क्योंकि तू उनकी हमायत करता है. और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें क्योंकि तू सादत को बरकत बख्शेगा. हमारा खुदा हमें बरकत बख्शता है. वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता, कभी मोहताज नहीं छोड़ता. आगे क्या लिखा है? ऐ खुदावन तू उसे करम से सिपर की तरह ढांप लेगा. तो खुदावन हमारा खुदा जो है वो हमें अपनी पनाह में महफूज रखता है. वो हमें अकेला नहीं छोड़ता. वो हमें हमेशा हम पर अपनी बरकतों को नाजिल करता है क्योंकि बरकतें सिर्फ हमारे खुदावन की तरफ से ही हमें मिलती है. दुनिया की तरफ से आपको जो कुछ भी मिलता है वो एक वसीला होता है. आपने ये देखना है कि आपका ईमान और आपकी उम्मीद जो है वो अपने खुदावन पर होनी चाहिए. और जब जब आप उस पर ईमान रखेंगे, आपकी आस उस पर होगी, you will wait patiently on the Lord, you will come out with a testimony rejoicing. Believers always rejoice, no matter what happens. आप नए अमेरिका में आए हैं, आप बड़े सालों से अमेरिका में रहते हैं, आपको किसी चीज की जरूरत है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैरिज प्रॉब्लम्स है, पर्सनल इश्यूज है, एडिक्शन है आपके नौजवान बच्चों के अंदर, ड्रग्स की किसी तरह से भी कोई भी प्रॉब्लम है, आपके बच्चे पढ़ाई में वीक है, आपके बच्चे आपकी एक्सपेक्टेशंस पर नहीं उतर रहे, आपके बच्चे जो है खुदा उनके घर आना पसंद नहीं करते. नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, बी होपफुल. खुदावन पर आस रखिए सब्र से. खुदावन हालात को बदलेगा. वो नौजवान बच्चों की जिंदगियों को भी बदलने में की कुदरत रखता है. बहुत सी गवाहियां आपने ऑन इंटरनेट में देखे, पर आपके खानदानों में, आपकी जिंदगी में गॉड फर्स्ट होना चाहिए. इफ यू हैव गॉड फर्स्ट, then you know when something happens, who do you go first? To God. और what happens जब आप किसी सिचुएशन में से बाहर निकलते हैं, आप कभी मुड़ के देखिए कि उस बीमारी में, उस डिजायर में जब आप खुदावन से कुछ चाहते थे, आपका रिलेशनशिप खुदावन के साथ कितना स्ट्रांग हो जाता है. जब हम पे कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, हम कितनी दुआएं करते हैं, कितने रोजे रखते हैं, 3 रोजे रखते, 7
आपने कभी सोचा कि वो वक्त जब आपको कुछ चाहिए था, आपका खुदावन का कैसे रिश्ता बना? कितना खूबसूरत वक्त, आपको कुछ चाहिए था और आप जो है कितनी खिदमत उसकी कर रहे थे। कई दफा लोगों को जब मिल जाता है, they forget about the goodness of God. So always stay connected, always have a good relationship with the Lord, always have fear of the Lord in your house. अगर आज आप खुदावन पर ईमान रखेंगे, आपके बच्चों को भी पता होगा कि कोई सिचुएशन है, तो we have to turn to the Lord first. If you bring your children to church, you tell them to pray. अगर आपके घर में कोई सिचुएशन भी है, tell your children, let's get together. Let's pray about the situation. आपको कुछ चाहिए, let's pray about the situation. तो आपके बच्चों को भी पता होगा, आपकी आने वाली नस्लों को पता होगा कि we have to pray to our God Almighty, and He will deliver us, He will heal us, He will make us rejoice, and He will bring us out with the testimony. Amen.